So today we will do some additional topics like Fermat's principle and how using Fermat's principle you can derive law of reflection and law of refraction. So we are going to do Fermat's principle. And it is also known as, I'm extremely sorry for this, it is also known as principle of least time. And actually this is the principle which relates the wave optics and the ray optics. And its statement is that the light which is traveling from, let's say, point A to point B in a medium, then light will take the path जिसके लिए उसे सबसे कम समय लगेगा. Okay, जिसके लिए सबसे कम समय लगेगा, then that path light will choose. And actually the exact definition you can say is that it is actually the link between ray optics and wave optics, and the path taken by a ray of light between two given points will be the path that can be traversed in the least time. So let me just write it, what I'm saying. The path taken by a ray of light between two given points is the path that can be traversed in least time. It is the path that can be traversed in least time. हमने ये नहीं कहा है यहाँ पे कि जो पाथ ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होगा वो नहीं, हमने कहा है वो पाथ लिया जाएगा जिसके लिए समय सबसे कम लगेगा, traversed in least time. So if speed is constant, if you assume that speed is constant, so speed, let's say, is given by v is equals to distance upon time. Okay, speed is given by distance upon time, and I'm saying that speed is constant. Okay, speed is constant. If speed is constant, then सबसे कम समय लगेगा जब हमारे पास सबसे कम जो है distance होगा. So for constant speed you can say that the time taken will be least for least distances, तो जो कि straight line paths होते हैं, provided the speed is constant. अगर नहीं होगी speed constant तो फिर एक ऐसा path लिया जाएगा जहां से time कम हो जाए, भले ही path straight line ना रहे. This is what is Fermat's principle. The path taken by a ray to reach from A to B is the path that can be traversed in least time. सबसे कम समय लगना चाहिए. Now, based on this principle, we will prove law of reflection and law of refraction. Okay. law of reflection and law of refraction prove करना है. तो एक surface मानिए, let's say this is a surface, और यहाँ you have a point A, and another point you have is B. ठीक है, और कोई एक पॉइंट जहां पर A से आने वाली रे टकराती है और टकराने के बाद B पर जाती है. ठीक है, यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्फेसेस, रेगुलर इरेगुलर, तो हम इरेगुलर भी मान सकते हैं कि केवल सिंगल रे की बात हो रही है. सो अ रे कम्स फ्रॉम A, इट स्ट्राइक्स एट अ पॉइंट C एंड गोज बैक टू B. ठीक है, और यहां मानते हैं दैट A जो पॉइंट है इज एट ओरिजिन 0, x इक्वल्स टू 0 पे. B जो पॉइंट है is at a distance
small c. Okay, so let me just say that this is not a point C. Let me call this as a point Q, because C हमने distance ले लिया तो notations खराब हो जाएंगे. And the distance between O and Q is let's say x. तो ये बचा distance कितना हो गया? Distance between Q and P, तो QP होगा C minus x, because the total is C. और ये अलग अलग तरीके से it can come, like you can have one way in which your x is here but b goes there. एक दूसरा तरीका ये हो सकता है. एक तरीका ये हो सकता है that it is striking like this and then going back. Okay, fine, we can have this anyways. So we will focus on one such path जहां x पर किसी एक डायरेक्शन, किसी एक एंगल पे आके ये रे टकराती है और वापस b पर जाती है. कोई एक ऐसा पाथ, कोई एक ऐसा x. आप देखें x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. It can also be like this. We don't know अभी कि ये एंगल क्या होंगे. We are not aware about that. So let me take only one such scene जिसमें you have point A and you have point B and you have a point Q. और रे जो है वो A से आके Q पे टकरा के B पर वापस चली जाती है. फाइन. अब डिस्टेंस इस सरफेस से A का मान लीजिए स्मॉल a था और डिस्टेंस इस सरफेस से B का स्ट्रेट डिस्टेंस स्मॉल b था. तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. If you take this point as origin, then the distance between this point and this point I have taken as C. ये O है और OQ x के बराबर है और फिर QP जो है आपका C माइनस x के बराबर होगा. फाइन. मान लीजिए वेलोसिटी है v. तो अगर टाइम ट्रेवर्स किया जाए वो निकालना है तो टाइम कितना खर्च हुआ. आई एम कॉलिंग दैट टाइम एज डेल्टा टी. कि A से Q में या A से Q तक आने में कुछ टाइम खर्च होगा. दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. AQ अपॉन स्पीड मान लीजिए v है. प्लस अब Q से B पर जाएंगे, Q से B पर जाएंगे अपॉन डिस्टेंस आपकी स्पीड आपकी v ही है. अगर आप यहाँ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएं that this is a, this is x, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो AQ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन v, प्लस आप QB को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन b. एंड दिस इज द टाइम टेकन. दिस इज द टाइम टेकन. अब हमें पता करना है फॉर विच पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x दिस टाइम टेकन विल बी मिनिमम. तो आपको मिनिमा प्रूफ करना है. तो टाइम टेकन मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरम से आपने पढ़ा है कि इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस t with respect to x equated to 0, you will get some equations and that will tell you what is going to be the relation for x such that the path travel is the least. Okay, so I will take derivative of this with respect to time. Sorry, with respect to x, because we want to minimize for position x, not with respect to time but with respect to x. If you do that, that will be del by del t of x. टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी. अब इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/2 v कॉमन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर a स्क्वायर और x स्क्वायर का यह हो जाएगा 2x. okay, it will be -2x/2 v अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. फिर एक टर्म आएगा -1/2 v अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म b स्क्वायर प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर. और फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो इट विल बी 2c माइनस x, और माइनस x एक और बार आएगा तो ये हो जाएगा प्लस. तो यू हैव गॉट इट इन दिस फॉर्म. दिस इज 2x/2v अंडर रूट ऑफ दिस.
इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, you will get this. Now for maxima minima what you do, you equate it to 0. So for maxima and minima, ये जो टर्म है हमारे पास, हम इसे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है. So when you will put it to 0 or equal to 0, सबसे पहली चीज तो आप देखें, you will be having an equation like this, जिसमें 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है. So you will get x upon v under root a square plus x square, and this will be equals to x upon, sorry, it should be c minus x upon v under root of b square plus c minus x का होल स्क्वायर. अब v से v भी कैंसिल कर दीजिए बिकॉज वी आर इन सेम मीडियम. ओके, इसके मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, दैट्स व्हाई आई विल कैंसिल v एंड v एज वेल. नाउ एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट है. मान लीजिए दिस वाज द नॉर्मल. ओके, इफ दिस वाज द नॉर्मल एंड दिस एंगल वाज लेट्स से एंगल I, तो डेफिनेटली ये इस नॉर्मल के पैरेलल होगा ये लाइन भी, सो दिस एंगल विल आल्सो बी एंगल I. ओके, ऑल्सो इफ आई कंसीडर दैट दिस इज एंगल R, तो ये एंगल भी हो जाएगा एंगल R. इंटीरियर पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं. एंड यू कैन फ्रॉम हियर आप देखिए साइन I की वैल्यू क्या होगी. साइन होता है, क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर आप देखें इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये एग्जैक्टली साइन I के बराबर है, इज इक्वल्स टू, और इफ यू सी फ्रॉम हियर दिस c माइनस x इज परपेंडिकुलर and b square plus under c minus x का whole square का root is the hypotenuse. This is equal to sin r. Anyways you got that sin I equals to sin r. यहाँ से हमें पता चला एंगल I और एंगल R अगर बराबर होंगे उस पाथ को your light will follow. तो यहाँ पे if I drop a perpendicular like this path will not be followed by light. Even this path will not be followed by light. This path will not be followed by light. और हो सकता है ये भी ना फॉलो करे, केवल वो पाथ फॉलो किया जाएगा जहां साइन I इक्वल टू साइन R होगा. तो यहां हमने फर्माट्स प्रिंसिपल, यानी जो कि केवल शब्दों में कहा गया है कि लाइट एक ऐसी दिशा में ट्रेवल करेगी जहां उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में सबसे कम समय लगेगा. तो वहां से हमने प्रूव किया कि अगर ऐसा ट्रू है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी ट्रू है. साइन I शुड बी इक्वल्स टू साइन R. ओके, तो ये बात हुई रिलेशन बिटवीन फर्माट्स प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. In next part of the video we will see relation between Fermat's principle and law of refraction.